Hi everyone, welcome back to AgriClarity, a unit of clarity for sure. In today's Concept Clarity series, we are back with another part or next part of plant physiology's important topic, which is plant growth regulator. So today we'll understand an important plant growth regulator, which is gibberellin, in a simple and a structured way. So this hormone plays an important or major role in seed germination, bolting, internode elongation, and even fruit development. So let's know everything about gibberellin in today's session. So let's start with how gibberellin was discovered. So let's begin with a little story from Japan. A scientist named Kurosawa observed something strange. He saw that rice seedlings infected by a fungus called Gibberella fujikuria. Also, these seedlings were called foolish seedlings. Uh, These seedlings grew unusually tall, thin, and pale. So he discovered that the fungus was producing a substance causing this excessive growth. So he tried to, from these infected seedlings, he tried to isolate that growth promoting compound and named it gibberellin. सो ये जो जिबेलिन था वो हमारे एक जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा ने ऑब्जर्व किया था राइस सीडलिंग्स में, जिसके वजह से उस सीडलिंग्स को फुलिश सीडलिंग्स की तरह भी जाना जाता है. सो ये जो फंगस था जिबेलिया फुजिकुरिया, उन्होंने ये नोटिस किया इस फंगस की वजह से कि जो राइस सीडलिंग्स थे वो काफ़ी टॉल, थिन और पेन शो कर रहे थे. सो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड सीडलिंग्स थे उनमें से ये कंपाउंड जिबेलिन को एक्सट्रैक्ट किया और उसका नेम कर दिया, नेमिंग हो गया जिबेलिन्स. ओके, so now let's see how gibberellins or how plant makes gibberellins. Generally, the plants do not need fungi to make gibberellins. They make themselves. Gibberellins are like they are synthesized naturally in the plants through multi-step biochemical pathway starting from acetate. So here is a simplified version of the pathway. So the first element which initiates the biosynthesis of gibberellin is acetate with the coenzyme acetyl or acetate. It gives rise to acetyl coenzyme A. Then acetyl coenzyme gives rise to malvonic acid. The malvonic acid is then transformed to malvonic acid pyrophosphate. Then malvonic acid pyrophosphate is then converted to isopentyl pyrophosphate, then geranyl pyrophosphate, then GGPP, which is geranyl pyrophosphate, choline, and gibberellin. The important thing from this biosynthesis is that there can be, or there would be, two questions can be arise from this biosynthesis. Is that what is the initial element which is responsible for starting from where the biosynthesis starts, and which element is the precursor of biosynthesis. So first element is acetate and the precursor is chlorine. ठीक है. सो इस बायोसिंथेसिस में एक दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं इस बायोसिंथेसिस साइकिल या स्टेप्स में से कहा जाए तो वो होता है पहला क्वेश्चन कि सबसे पहला इनिशियल एलिमेंट कौन सा है जिससे बायोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, और सेकंड है क्वेश्चन कि इस बायोसिंथेसिस का प्रीकर्सर कौन सा है. ठीक है. तो ये पूरे स्लाइड में मैंने आपको दो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने आपको कंक्लूड करके बता दिया. सो यहाँ आप इमेज से देख सकते हो जो हमारे साइंटिस्ट कुरोसावा ने ऑब्जर्व किया था उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक ऐसे प्लांट देखा था जिसमें ये जिबेलिन फंजाई इन्फेक्ट किया हुआ था. वो कन्वेंशनल सीडलिंग से काफी ज्यादा लंबा और टॉल और पेल दिखाई दे रहा था. तो उन्होंने इसमें से आइसोलेट किया और देन जिबेलिन की डिस्कवरी हुई. ओके, मूविंग ऑन. Now let's see what gibberellins do in plants and like how these hormones affect several important processes. Let's walk you through. Okay, so there are generally 7 major effects of gibberellins on plant. We'll go one by one. Okay, first is seed germination. Okay, so some seeds like lettuce or tobacco need light to germinate, but gibberellins can replace the need for light. They trigger the germination even in darkness. So this is especially helpful for underground sown crops. So gibberellins एक ऐसा सबसे अच्छा इसका जो इफेक्ट कहा जा सकता है वो ये है कि जो लेट्यूस और टोबैको प्लांट होते हैं इनको जनरली लाइट की जरूरत होती है.
ओके क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स है तो इनको लाइट की ज़रूरत होती है, तभी ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना जो एक्चुअल प्रोडक्टिव पार्ट है उसका उसकी ग्रोथ बढ़ाएंगे। बट अब अगर लाइट नहीं है किसी से वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्टैंस में हम जिबलिन का स्प्रे कर सकते हैं और उनकी लाइफ जो लाइट डिपेंडेंसी उनको रिड्यूस करके हम उनके सीड को इवन जर्मिनेट करवा सकते हैं, ताकि वो अपना जो प्रोडक्टिव पार्ट है उसको प्रोड्यूस कर सके। ओके, सो नेक्स्ट effect of the gibberellin is that dormancy of buds. Okay, so in temperate areas where buds formed in autumn and autumn remain dormant during winter, but application of gibberellin can break dormancy. So a good example is that potato tubers, after harvest they stay dormant, but gibberellin induce sprouting. So जैसे कि dormancy of buds से ये conclude होता है कि ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो ऑटम में डोमेंट रहते हैं ड्यू टू विंटर कोल्ड वेदर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, जिबलिन के यूज से हम उनके जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है विंटर के टाइम में, हम उनका डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं और स्प्राउटिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल प्रैक्टिस होता है हमारे पोटैटो के स्प्राउटिंग के लिए। जब हमको पोटैटो रबी सीजन में मतलब कोल्ड वेदर में लगाना होता है तो हम स्प्राउटिंग करवाने के लिए जिबलिन का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कहा जाए इसके इफेक्ट में आ सकता है। ठीक है, डॉर्मेंसी ब्रेक करना एक इसका मेजर रोल कह सकते हैं जिबलिन का। ओके, so next is root growth. So this one is interesting actually. Gibberellin do not help roots as such much. Okay, in fact high doses may slow root growth, especially in cuttings. Gibberellins may even inhibit root initiation, so not useful for roots. Interestingly, gibberellins do not promote root growth. Okay, so in fact, so this is the reason that gibberellin root growth में एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि अगर हमने इससे पहले आपने ऑक्सिन का देखा होगा, जब मैं ऑक्सिन के की एस्पेक्ट्स को डिस्कस करी थी तो मैंने वहाँ पे आपको स्पेशली पॉइंट आउट किया था कि रूट ग्रोथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है और जिबलिन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो रूट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारा सबसे प्राइम एग्जाम्पल होगा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऑक्सिन है। ठीक है, रूट ग्रोथ के लिए। और अगर हमको रूट ग्रोथ को इनहिबिट करना है तो हम उस टाइम में क्या यूज करेंगे, जिबलिन। यहाँ से ये कंक्लूड होता है। ओके, सो आपको यहाँ से रिवर्स फैक्टर याद करना होगा कि ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ एंड जिबलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द रूट ग्रोथ। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकता है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट is the elongation of internode. ये सबसे important आफ्टर डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स के बाद सबसे important क्वेश्चन अराइज होने वाला टॉपिक या इफेक्ट बोला जाए जो जिबलिन का होता है, वो elongation of internode से होता है। So let's see. So this is the most pronounced effect of gibberellins. They increase internode length, helping plants like dwarf pea and dwarf maize to overcome genetic dwarfism. So think of gibberellin as a height booster for plants. Okay, so ये stem elongation में help करता है। अगर आपने अगेन आई पॉइंट आउट किया, अगर आपने ऑक्सिन का लेक्चर इससे पहले जो मैंने कंडक्ट किया था उसको आपने देखा होगा, तो मैंने वहां पे वापस से एक स्पेसिफिक जगह पे डिनोट किया था कि सेल इलोंगेशन की बात होगी। ठीक है, सेल इलोंगेशन की जब बात होगी तो वहां पे हमारा आंसर होगा ऑक्सिन। And when we'll talk about stem elongation, the answer would be gibberellin. Okay, so मैंने यहाँ से आपको ऑक्सिन के दो डिफरेंस जिबलिन से कंपेयर करते हुए मैंने आपको बताया। इससे पहले हमने ऑक्सिन का डिफरेंस ये पढ़ा था कि ऑक्सिन प्रमोट्स रूट डेवलपमेंट whereas जिबलिन प्रमोट्स शूट डेवलपमेंट। So and auxin is involved in cell elongation whereas gibberellin is involved in stem elongation. So यहाँ से आपको एग्जाम्पल्स के साथ और कंपैरिजन के साथ आई गेस तो आपको सबको याद हो रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। ओके, सो हम मेज में और पीज में जो ट्रॉफिज्म की प्रॉब्लम होती है, ट्रॉफिज्म इन द सेंस प्लांट्स काफी शॉर्ट रहते हैं, तो उनके जो ट्रॉफिज्म या शॉर्ट स्ट्रेचर होता है उनको ओवरकम करने के लिए हम जिबलिन का यूज कर सकते हैं।
Okay, let's see the next. So our next effect is bolting and flowering, which is also a major important effect of gibberellin after elongation of intron. So bolting or flowering में क्या होता है कि many rosette plants, or we can say short stem plants like beet, cabbage, remain short initially. So under long day conditions, gibberellin cause bolting and the stem elongates and shows or initiates flower formation. And in short day plants, the effect may vary, like it may promote flowering or it may inhibit flowering, or there could be no effect. So इससे ये पता चलता है कि बोल्टिंग और फ्लावरिंग एक साथ चलते हैं, they both comes along. और अगर जिबलिन का आप यूज करोगे तो लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होगा, जो हमारा फ्लावरिंग होता है वो अर्ली इंड्यूस जाता है, और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है, बट देर आर 3 केसेस देख कि एक्सटर्नली अगर आप डाल रहे हो जिबलिन तो हो सकता है वो फ्लावरिंग भी इंड्यूस करे, हो सकता है नहीं भी इंड्यूस करे, या फिर कोई इफेक्ट ही ना हो। ओके, शॉर्ट डे प्लांट के स्पेसिफिकली तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया बोल्टिंग और फ्लावरिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो भी रोजेट टाइप के प्लांट्स होते हैं हमारे बीट और कैबेज, उनके लिए हम जिबलिन को यूज करते हैं ताकि उनमें जल्दी फ्लावरिंग आ सके। ओके, so next is parthenocarpy, which is also we had discussed in auxin. उसमें भी हम parthenocarpy attend कर सकते हैं with the application of auxin. Okay, so अगर आपको पता होगा कि कौन सा synthetic auxin को हम use करके parthenocarpy induce कर सकते हैं, so you can answer that in the comments below. So let's see. So gibberellins can trigger parthenocarpic fruit development. That means seedless fruits without pollination. Example, there could be tomatoes, okay, large seedless fruits, then grapes, okay, seedless grapes, and also effective in pome and stone fruits where auxin fails. हम pome और stone fruits में auxin को काफी बार वहाँ पे ऑक्सीजन उतनी अच्छी तरीके से एग्जिबिट नहीं कर पाता है, तो हम उस केस में जिबलिन को यूज कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो अगर आप जिबलिन को यूज करोगे तो आपके जो प्लांट्स है वो काफी आई मीन ग्रेप्स होते हैं वो काफी बिग साइज के भी हो सकते हैं, काफी अच्छे जूसी भी हो सकते हैं और सीडलेस होते हैं, और ये वैसे ग्रेप्स है जो जिन पे हमने पार्थेनोकार्पी यूज नहीं किया। ओके, next, one of the most important and one of the most tricky topic or effect of the gibberellin is enzyme alpha amylase synthesis. Okay, so let's see what this talks about. So one of the most exam important points, gibberellin trigger production of enzyme alpha amylase in germinating seeds. Okay, so this enzyme breaks the, let's know what is the motive of alpha amylase. So alpha amylase is the enzyme which helps in breaking down the starch in the endosperm to simple sugars, which the baby plant uses or the embryo uses for its energy. So during seed germination, gibberellin stimulates the production of alpha amylase in the aileron layer of the cereal seeds. Okay, and then the enzyme converts starch into sugars and which provides energy to the growing embryo growth. So जिबलिन्स क्या होता है, कभी कभार क्या होता है अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन जो सीरियल सीड्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपने सीड को जर्मिनेट कर दिया लेकिन अब वो सीड को ग्रो करने के लिए सो कर दिया, लेकिन वो सीड को अगर ग्रो करना है, जर्मिनेट होना है, तो उसको क्या करना होगा, अपने सीड में जो प्रेजेंट जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करना होगा। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, और जो एंजाइम होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो होता है अल्फा अमाइलेज। मगर क्या होता है कभी कभार सीड डोरमेंट हो जाता है, या फिर सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है, या फिर अल्फा अमाइलेज एंजाइम वहां पे एक्टिव नहीं हो पाता। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, अगर आपको पता चल रहा है कि आपके फील्ड में जर्मिनेशन नहीं हो रही है, सीरियल फील्ड की बात करे जाए, तो आप वहां पे एक्सटर्नली जिबलिन का स्प्रे करवा सकते हो, और वो स्प्रे करने से क्या होगा, सीरियल्स के अंदर अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, देन वहां से वो ब्रेक डाउन होगा और फिर एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए वो शुगर को प्रोड्यूस करने लगेगा। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वी कैन से कंफ्यूज्ड क्वेश्चन इफेक्ट है जिबलिन का, जो काफी लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, या पता होता भी है तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ओके, सो
That's all. We have discussed all the 7 major impacts or effects of the gibberellin. Now let's see how gibberellin is distributed in the plants. Okay, so gibberellin are found throughout the plants, whether it can be roots, shoots, leaves, flowers, and seeds. But there are certain organs or certain parts of the plant where gibberellins are found in much higher levels. Okay, so they are found in especially higher level in immature seeds and flowers. Okay, so you can see यहाँ पे ये टेबल फॉर्मेट में मैंने आपको दिया हुआ है कि जिबलिन की लेवल क्या होती है पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में. अगर शूट्स की बात की जाए तो दे आर इन मॉडरेट लेवल. फ्लावर्स की बात की जाए दे आर ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स की बात की जाए दे आर ऑफ हाई लेवल. एंड इमेच्योर सीड्स में काफी हाई लेवल के होते हैं. सो यहाँ से आपके लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ से ये अराइज होगा कि कौन से आपको एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस दे देंगे ये सारे प्लांट की पार्ट से. देन यू हैव टू पिक आउट कि विच ऑप्शंस और विच ग्रुप ऑफ ऑप्शंस हैव और विच कंटेन्स हायर लेवल ऑफ जिबरेलिन लेवल्स इन देम. ओके, देन आपको चूज करना होगा जैसे कि 1 2 3 4 5 करके आपको प्रॉपरली दिया है कि शूट्स है, फर्स्ट पे शूट्स है, सेकंड में लीव्स है, थर्ड में फ्लावर्स है, देन फोर्थ में सीड्स है. देन आपको बोलेगा इनमें से आपको ग्रुपिंग करनी है, तो आप उसमें किसके ग्रुप्स करोगे? आप फ्लावर और सीड्स का एक ग्रुप बनाओगे. देन ऑप्शन 3 and 4 वुड बी द बेटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज इट. देन अगेन फॉर्म्स ऑफ जिबरेलिन्स जो हमने ऑक्सिन में पढ़ा था कि 2 तरह के ऑक्सिन होते हैं. देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिन, फ्री एंड बाउंड. वैसे ही यहाँ पे जिबरेलिन्स में भी होते हैं. देयर आर ऑफ फ्री जिबरेलिन्स एंड देयर आर ऑफ बाउंड जिबरेलिन्स. जो फ्री जिबरेलिन्स होते हैं वो काफी मोबाइल होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन भी ईजी होता है और ये काफी एक्टिव फॉर्म में होते हैं. देन जो बाउंड जिबरेलिन्स होते हैं वो किसी से अटैच्ड होंगे, चाहे वो हमने वहाँ ऑक्सिन में पढ़ा था, चाहे वो शुगर से अटैच होंगे या तो एमिनो एसिड से अटैच होंगे. तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स जो शुगर फॉर्म होता है उनसे अटैच है, तो यूजुअली किसमें? जिबरेलिन ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में बाउंड होते हैं. ओके, सो आपको मैंने यहाँ से ऑक्सिन का भी रिवीजन करा दिया और साथ में कंपैरेटिवली मैंने आपको जिबरेलिन के बारे में बता दिया. ओके, सो इन शॉर्ट जो फ्री जिबरेलिन होता है वो एक्ट करता है इमीडिएटली एंड व्हाइल दी बाउंड वंस आर ऑफ स्टोरेज रिजर्व्स. ठीक है, पहले फ्री जिबरेलिन्स को यूटिलाइज करेगा प्लांट, देन बाउंड जिबरेलिन्स को बाद में यूटिलाइज किया जा सकता है. और एक्सट्रैक्शन का तो आपको पता है दोनों में से किसका एक्सट्रैक्शन फॉर्म सबसे इजी होता है? फ्री का काफी इजी होता है एंड बाउंड के लिए काफी सारे प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस से जाना पड़ता है. ओके, so this was it. Let's quickly revise what we have learned in today's session. So अगर if we talk about the effect of on seed germination of gibberellins, it replaces the requirement of light. जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था लेट्यूस या फिर बीट, ये सारे जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, टोबैको स्पेसिफिकली लेट्यूस और टोबैको, तो वो लोग को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेट होने के लिए. बट कुछ केस में अगर वहाँ रिक्वायर्ड लाइट नहीं है तो हम जिबरेलिन का यूज करके उनका जर्मिनेशन प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बर्ड डोमिनेंस. आपका जो डोमिनेंसी को ब्रेक करता है. ऑटम टाइम में हमारे जो सीड्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, तो हमको विंटर के लिए उनको जर्मिनेट कराने के लिए प्रॉब्लम होती है. तो उस केस में हम जिबरेलिन का यूज करते हैं, उनकी बर्ड डोमिनेंसी को रिमूव करके वहां से स्प्राउटिंग करते हैं. स्पेसिफिक एग्जांपल विच वाज इम्पॉर्टेंट वाज पोटैटोस. ओके, इसके लिए हमने पोटैटोस का डिस्कस किया था. सो नेक्स्ट इज रूट ग्रोथ. हमने रूट ग्रोथ के बारे में बात की थी कि दैट एट हायर डोजेस जो रूट ग्रोथ इनिबिट कर सकता है, और रूट ग्रोथ के लिए हमने कंपैरेटिवली बताया था कि ऑक्सिन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है रूट ग्रोथ करने के लिए. ठीक है, ये चीज़ हो गई. फिर नेक्स्ट था हमारा इंटरनोड इलोंगेशन इफेक्ट. इसमें हमने बताया था कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जिबरेलिन का रोल इंटरनोड या इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स के लिए. तो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था कि अगर सेल इलोंगेशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सिन होगा, और स्टेम इलोंगेशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे जिबरेलिन होगा. तो इस तरीके से हमने रिवाइज किया था. देन नेक्स्ट था बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग. बोल्टिंग और फ्लावरिंग में मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स में ट्रिगर करता है, जैसे कि रोजेट प्लांट्स हो गए हमारे, कैबेज हो गया, बीट हो गया, तो उनमें ये ट्रिगर करता है. ठीक है, बोल्टिंग कैसे ट्रिगर करेगा? लॉन्ग डे प्लांट्स में जल्दी से फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देगा, और शॉर्ट डे प्लांट में इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके,
फिर नेक्स्ट था हमारा पार्थेनोकार्पी। तो हमने बताया था कि कुछ केसेस जैसे कि पोम फ्रूट्स या स्टोन फ्रूट्स हो गए, उसमें ऑक्सीजन कभी कभार हमारा पार्थेनोकार्पी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के यूज से भी हम पार्थेनोकार्पी अटेंड कर सकते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? जब हम फ्रूट्स का डेवलपमेंट करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। तो इस तरीके से हम पार्थेनोकार्पी का इसमें भी यूज कर सकते हैं। जिबलिन के थ्रू हम जो टोमेटोज हो गए, ग्रेप्स हो गए, इनका पार्थेनोकार्पी के थ्रू हम इनको बना सकते हैं। ओके, फिर लास्ट था हमारा अल्फा अमाइलेज सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो स्टार्च ब्रेकडाउन होते हैं, जो भी सीरियल्स होते हैं जो जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनमें अल्फा अमाइलेज एंजाइम को प्रमोट करता है ये सिंथेसिस करवाने के लिए। तो यहाँ पे भी जिबलिन का यूज होता है। ओके, सो दिस वाज इट। तो यहाँ पे आज ये सेशन पढ़ने का मोटिव क्या था? ओके, सो व्हाई जो why IBPS AFO aspirants must know about Javelin. So I would point out 4 points. Okay, first point is that plant growth regulation in agri practices. You know about how these plant growth we can use them in different agricultural practices. Then how you can promote early sprouting in case of dormancy or in case of low light requirement. Okay, so next is how you can commercially use like seedless fruit production. Okay, क्योंकि आजकल seedless fruits का बहुत ज़्यादा demand है, so you can use or you can know about which hormones or regulators are used for attaining seedless fruits. Okay, then fourth key point हो सकता है कि आपको पता हो सकता है how to handle plant dormancy and how can you handle ड्रॉप वैरायटीज। सो इस तरीके से ये 4 वजह है कि आपको ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। सो क्वेश्चंस ऑफन दे कैन बी इनडायरेक्ट फॉर एग्जाम। आई एम ट्राइंग टू से अबाउट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चंस कैन ऑफन ट्राई टू बी इनडायरेक्ट, लाइक हाउ, like say what is the hormone that induces alpha aminase in barley endosperm, or which hormone breaks seed dormancy in light sensitive seed lettuce seeds. So इस तरीके से questions आ सकते हैं. So you can conclude that this is a high yield content for your exam both in prelims and mains. The prelims in the sense NABARD के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि NABARD में भी ये इससे question आ सकते हैं. Okay, so इस तरीके से ये काफी ज़्यादा high yielding topic है. So now let's solve few questions on the basis of today's session. देखते हैं let's see how many students have understood about today's session. So please I request every student watching this session so far to answer these questions in the comments below. अभी तक बहुत सारे sessions conduct हो चुके हैं, but इसमें कोई किसी students का engagement नहीं हुआ है answers को डालने के लिए. बट आई रिक्वेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप भले ही आपकी मिस्टेक्स हो रही है, इट डजेंट मैटर, बट यू शुड ट्राई. ओके, आप ट्राई करो आंसर करने का. यू शुड नॉट फेयर अबाउट बीइंग जज बाय एनीबडी एल्स. ओके, आपको पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी स्टेमिना कितनी है. यू शुड नॉट फियर अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चंस. जस्ट अगर आप एक हैबिट में आ जाओगे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, सो यू विल eventually with the time you will feel confident enough. Okay, so let's get started. First question is which of the, I have tried कि थोड़े logical based questions भी हो इसमें, so please be attentive. First question is which of the following best explains why gibberellins treated lettuce seeds can germinate in complete darkness. Okay, so first option is gibberellins supply the required oxygen. Second is gibberellin activate red light photoreceptors. Third is gibberellin mimic the effect of red light by inducing alpha amylase. Fourth is gibberellin increase chlorophyll content. Fifth is gibberellin reduce seed coat thickness. Okay, so next question is which of the following practical agricultural application would most benefit from gibberellin treatments? First option is enhancing root branching in vegetative cuttings. Second is delaying fruit ripening for storage. Third is producing seedless grapes commercially. Fourth is preventing premature seed germination in cereals. And last is enhancing drought resistance in seedlings. Okay. Third question is, it's quite long.
A horticulturist observes that after gibberellin treatment, dwarf maize plants reach nearly the height of normal ones, while still genetically dwarf. Okay, which principle of plant physiology does this observation most strongly support? First option is hormone can alter genotype. Gibberellins permanently change gene expression. Third is phenotype can be modified without altering genotype. Fourth is gibberellins increase root to shoot ratio. Fourth and last is environmental light is solely responsible for internode elongation. And the last question is for today's session is a researcher removes immature seeds from a plant and observes a sudden decline in gibberellin levels in surrounding tissues. Which of the following justifies this observation? Okay. So the first option is gibberellins are synthesized primarily in mature xylem. Seeds are passive carriers of hormones, not producers. Immature seeds are a rich source of gibberellin synthesis. Fourth is removal of seeds shifts cytokinin flux to vegetative parts. And last is gibberellins are inactive in reproductive parts. So these were the questions. Please, I request everyone to answer these questions in the comments below. So that's all for today's session. Stay tuned for our next classes on cytokinin. That's all. Stay curious and keep growing like gibberellins. Thank you.